Welcome everyone, and let us start today's session. I hope it is clear. Chat box is open. उसमें आप लोग you can put in the messages. सभी का स्वागत है आज के सेशन में. And today is the fourth session of CSAT Quant Booster Series, especially targeting the examination of 2025. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं? You can unmute or you can put in the chat box. सभी लोग please try to be interactive. Please put in the chat box. How many of you are giving the examination 2025? Okay, Kaustov is giving. Okay, other people? Nikita, Namrata, Garima. Other people, please tell quickly. We have less time. We have to complete an important topic today. चलिए start करते हैं हम लोग. Today is the fourth session of CSAT Booster Series. Most of you are giving 2025 examination, or I think you are following the news also. Lot of things in the geopolitical domain is going on, and the issues related to the India-Pakistan war and all. So there was a lot of confusion among the aspirants कि exam होगा नहीं होगा. अभी भी some tension is going on. Things are changing very rapidly, right? And अभी certainty नहीं है, but if things normalize in the coming week, examination will be held. I think other examinations शायद NEET है और भी कुछ examination थे, ये notification admit card वगैरह आ गए हैं. तो mostly आपको तैयारी रखनी है 2025 के लिए. Don't waste your time following the news. Right, we have very less time with us, and even if the exam gets postponed, it will be like a additional time span for enhancing preparation. Right, so don't waste your time. Things can escalate or normalize very soon in a very short span of time. Right, so moving ahead. Today is the fourth session, and let me start with the current scenario. Like Indian Army is in Josh, okay na? And you have seen in the news also, like we have inflicted a heavy damage on the Pakistan side. Lot of things are going on. Many things will be revealed as the time passes. Indian Army is in Josh. आपका जोश कैसा है बताइए? How is the Josh? Low, high, medium, or very high? Please tell in the chat box. How is the Josh? साल भर आपने तैयारी किया है. You have worked so much for the past 1 year. जैसा UPSC एग्जामिनेशन का नेचर है, it is very different from any other examination. Like we have given IIT examination, we have given CAT examination. बहुत सारे एग्जाम्स आप देते होंगे. बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है जितना UPSC में लगता है. एंड UPSC एग्जामिनेशन ऐसा है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, एंड नॉट ओनली 1 year, बट मे बी 3 years, 4 years, और मे बी 5 years. तो ये सबसे यूनिक चीज़ है जो एग्ज़ाम को डिफरेंट बनाती है. और आपने देखा होगा इस बार की जो रैंक 1 आई थी मैडम, शी हैज़ वर्कड हार्ड फॉर 3 years. चौथे अटैम्प्ट में उनका निकला है, राइट? 3 बार से प्रीलिम्स नहीं निकला. जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ consistency, patience, and resilience is needed for the examination. Sir, if I may speak. Yeah, sure. Sir, he had been working. Okay. 8 years and. Yes, correct. So just it's an example कितना resilience चाहिए रहता है. और मतलब you have seen so many people are there. Anu Kumari ma'am is there. She was All India Rank 2 in 2018 examination, and उन्होंने जॉब किया 3 साल. उनका बेबी भी था, शादी भी हुआ था. उसके बाद भी शी लेफ्ट द जॉब एंड देन प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. इवन शी वेंट टू हर विलेज. उनकी मौसी का शायद या आंटी की थी उनकी. शी वॉज लिविंग इन द विलेज. So just to keep distraction out of her way, she went to the village and prepared there. Sometimes she came to Delhi to give the test series and all. कहने का मतलब है कि कितना त्याग, तपस्या और the resilience, patience people are showing. So we have to be like जो उन्होंने benchmark सेट किया है उसको तोड़ के और आगे से बड़ा माइलस्टोन सेट करना है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, एवरीवन्स जोश इज़ हाई. आई थिंक केशव इज़ राइटिंग मीडियम. तो जोश को हाई बना के रखिए. और एक मैंने जो सूत्रा जो पहला दिया था, ऑटो सजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, तोड़ के रख देंगे, ठीक है ना? बार बार अपने आप को, यू शुड हैव योर ओन स्लोगन. दिस इज माई स्लोगन, तोड़ के रख देंगे, ठीक है ना? ऐसा भी क्या डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा कि नहीं कर पाएंगे. आपने अगर मेहनत की 100% कर लेंगे. अगर फियर रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. फियर नहीं आना चाहिए. बहुत सारे लोग देखा मैंने 80 पेपर दे के गए हैं मॉक टेस्ट.
और एग्ज़ाम में जाके पूरा डेसिमेट हो गए, नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स, नॉट एबल टू परफॉर्म। रीज़न वॉज फियर। फियर हटा दीजिए, जो आपका 1x परफॉर्मेंस है दैट विल बिकम 5x, राइट। सेट योर ओन बेंचमार्क्स। जैसे आपका 2 घंटे का टाइम होता है, मैनी पीपल इन CSAT उनको लगता है यार 33% नंबर लाने हैं, पास करना है। बट सेट योर ओन बेंचमार्क। अगर आपकी अच्छी मैथमेटिक्स है, सेट अ बेंचमार्क कि भाई 80% सही करके आएंगे एग्जाम में। वाई ओनली 33%, वाई ओनली 50%? सेट योर ओन बेंचमार्क, तोड़ के रख देंगे, राइट। सो हर समय कीप ऑन इवॉल्विंग योर सेल्फ, ट्राई टू अचीव एक्सेलेंस इन वट एवर थिंग्स यू डू, राइट। So let us start today's topic. Today we are discussing very important topic, that is percentage. So this is a very favorite topic of UPSC. Every year we see 3, 4, 5 questions from percentage, and this topic is integrated with other topics also, profit and loss, Venn diagrams, right, and algebra, ठीक है ना। बहुत सारे टॉपिक्स के साथ मिलके इसका क्वेश्चन बनाया जाता है, एंड दिस विल बी यूजफुल इन सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस आल्सो, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड। सबसे अच्छी बात इस टॉपिक की ये है कि ओनली इजी और मीडियम लेवल क्वेश्चंस आर कमिंग, वेरी रेयरली वी हैव सीन डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। तो इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट, 4 क्वेश्चन कर लेंगे आप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वी हैव कॉम्प्रिहेंशन, वी हैव रीजनिंग एंड वी हैव मैथ्स और क्वांट। इसमें आप 25 में से 25 क्वेश्चन करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, खुल के खेलिए। 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, डजेंट मैटर, ठीक है। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आएगा, उसमें से मे बी यू डू 7 क्वेश्चन और मे बी 10 क्वेश्चन, इट इज़ अप टू यू। मैथ्स में अगर आप केवल 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं आउट ऑफ 35 to 40 क्वेश्चन, इसमें जो मैं बता रहा हूँ दिस ऑल्सो इंक्लूड्स डेटा सफिशिएंसी, राइट। सो 10 + 10 + 25 आराम से 45 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, राइट। और इसमें आप समझिए बात को, 27 क्वेश्चन ही चाहिए हमें करेक्ट, नेट करेक्ट, राइट। सो इवन इफ 10 क्वेश्चंस आर रॉन्ग देन ऑल्सो यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ, राइट। सो ट्राई टू बी वेरी फोकस्ड। 10 क्वेश्चन में से अगर परसेंटेज के आप 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1/3 ऑफ द टास्क इज कंप्लीटेड। 3-4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कर लीजिए, 3-4 क्वेश्चन मिसलेनियस कर लीजिए, जैसे मेंसुरेशन वेरी इजी टॉपिक, एवरेज वेरी इजी टॉपिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस वेरी इजी टॉपिक। आराम से आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे एंड यू विल ईजिली क्लियर द CSAT एग्जामिनेशन, राइट। So let us move ahead. Some concepts. Let us start with some concepts of percentage. You people have already revised, practiced. It is just a quick revision, right? कोई भी नंबर है, चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। कोई भी नंबर है तो हमने x% इंक्रीज किया और फिर x% डिक्रीज किया, ठीक है। कोई नंबर है, वी इंक्रीज इट बाय x%, डिक्रीज बाय x%, व्हाट विल बी द final value? It will increase, decrease, remain same, or we cannot say. Please tell. Very easy question. Okay. Others please confirm. Okay. So there is a number, it is increased by x% and then decreased by x%. What will be the final value? For example, कोई भी नंबर 200 है मान लीजिए, उसको आपने x% इंक्रीज किया और जो वैल्यू आई उसका फिर x% डिक्रीज किया, final value will increase, decrease, remain same, data insufficient. Kostov is saying decrease. Okay, others please tell. Very easy concept. फाइनल वैल्यू जो आएगी वो पुरानी वैल्यू से कम होगी, ज़्यादा होगी, सेम रहेगी, डिक्रीज होगी। ओके, आई थिंक द आंसर इज करेक्ट, कॉस्टोव इज सेइंग करेक्ट। अब आप ये समझिए 200 को इंक्रीज करोगे आप तो समथिंग वैल्यू विल कम 210 मान लीजिए, 210 मान लीजिए, जस्ट एक रैंडम नंबर में ले रहा हूँ। अब ये एक बड़ा नंबर है, इसका अगर x% डिक्रीज करेंगे, ऑब्वियस है जो वैल्यू ऑफ जो द टोटल वैल्यू दैट विल डिक्रीज विल बी मोर। जैसे इसमें 10 इंक्रीज हुआ है, अगर इसका x% निकालेंगे तो 10 से ज़्यादा आएगा, मोर देन 10। मोर देन 10 डिक्रीज होगा तो क्या होगा, 200 से कम हो जाएगा। वेरी सिंपल लॉजिक, राइट। तो अब ऐसे ही अगर हमें जस्ट एक जनरलाइजेशन करना है और इफ़ यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूलाज, राइट, x% इंक्रीज किया फिर से x% इंक्रीज कर दिया, तो व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू, x² by 100। आई थिंक ये सॉरी देखिए जरा, x% इंक्रीज किया, x% डिक्रीज किया, सेम वैल्यू को किया,
तो हाउ मच ये डिक्रीज हो रहा है, दिस इज द कंक्लूजन. हाउ मच परसेंटेज विल डिक्रीज, इट विल बी एक्स स्क्वायर बाय 100. वेरी सिंपल फार्मूला, एक बार में निकालिए, आगे बढ़ जाइए. राइट. सेकेंड, एक्स परसेंट इंक्रीज हो रहा है, वाई परसेंट डिक्रीज हो रहा है. कोई भी नंबर है, एक्स परसेंट इंक्रीज हो रहा है, वाई परसेंट डिक्रीज हो रहा है. व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू? बोथ आर इंक्रीजिंग, सॉरी, बोथ आर इंक्रीजिंग. So we have the formula x plus y, x y by 100. ठीक है. This much percentage the value will increase. अब इसमें डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हैं. ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अगर ये डिक्रीज हो रहा होगा तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. इस इक्वेशन में नेगेटिव वैल्यू डाल दीजिए. राइट. x डिक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू x की डाल दीजिए. राइट. दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों की नेगेटिव वैल्यू डाल दीजिए. वेरी इजी. राइट. दिस इज सेकेंड कॉन्सेप्ट. थर्ड कॉन्सेप्ट इज किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इफ इट डिक्रीजेज बाय x%, कॉस्ट प्राइस डिक्रीज हुआ x%, बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन शुड इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम. राइट. इसका बताइए क्या फॉर्मूला होता है? वेरी सिंपल फॉर्मूला. प्लीज टेल. कैन स्पीक, अनम्यूट एंड स्पीक ऑल्सो. ठीक है. वेरी सिंपल फॉर्मूला, x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100. राइट. और सिमिलरली अगर कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होता है तो हाउ मच परसेंटेज शुड द कंजम्पशन डिक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम. तो यहाँ पे x अपॉन 100 प्लस एक्स 200. राइट. वेरी सिंपल. थोड़ा सा इसको डिराइव भी कर सकते हैं, दिस कैन बी डिराइव्ड ऑल्सो, बट दिस विल वेस्ट टाइम. डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए, आगे बढ़िए. राइट. इज इट क्लियर? शैल वी मूव हेड? एनी क्वेरीज? प्लीज टेल. प्लीज ट्राई टू बी इंटरेक्टिव. कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं आप. ओके, लेट अस मूव हेड. नेक्स्ट एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम. इट कैन बी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस सेम कॉन्सेप्ट पे होते हैं. राइट. कोई पॉपुलेशन दे रखी है P या कॉस्ट प्राइस दे रखा है P, है ना, एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय R परसेंटेज every year. So what will be the final change price? So it is P dash. Change price is P dash. Original price is P. 1 plus R upon 100 की power n. Right. This we have also seen profit loss, simple interest, compound interest. इस तरह के फॉर्मूले यूज होते हैं. Final population of final price, original price 1 plus R by 100 की power n. N is the number of years. R is the rate of increase. Right. Very simple. अगर R डिक्रीज होता है तो यहाँ पे R की जगह माइनस R लगा दीजिए. सो व्हाट वी गेट 1 प्लस और नॉट प्लस, इट इज माइनस R by 100 की पावर n. दिस इज अ फॉर्मूला. वेरी इजी. राइट. और यहीं पे डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आता है. सम कार इज देयर, इट इज गेटिंग डेप्रिशिएटेड बाय 10% एवरी ईयर. व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू? इट विल बी ओरिजिनल वैल्यू 1 माइनस R by 100 की पावर n. राइट. एक तरह क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर n ईयर्स, तो उसमें ये लगेगा. और क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि व्हाट इज द वैल्यू बिफोर n ईयर्स बिफोर, 9 साल पहले, n ईयर्स बिफोर, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो व्हाट वी हैव टू डू? ओरिजिनल वैल्यू 1 माइनस R by 100 पावर n, डिवाइड कर देना है. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर देना. राइट. वेरी सिंपल. इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म. दो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं. नेक्स्ट, इफ दिस सक्सेसिव इंक्रीज इन द परसेंटेज वैल्यू एवरी ईयर, x%, y%, z%. राइट. तो इसका भी सिंपल फॉर्मूला होता है. ओल्ड वैल्यू 1 प्लस x अपॉन 100 की पावर 1, दैट इज यू कैन अवॉइड दिस ऑल्सो. 1 प्लस y की पावर 100, 1 प्लस z की पावर बाय 100. सिंपल फॉर्मूला. Right. So this you also heard in the compound interest. This kind of formula we use. Right. Let us move ahead. Let us move ahead with the questions. सभी लोग पेन पेपर ले लीजिए. CSAT में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी भी आपको बचा नहीं सकते. राइट. यू हैव टू प्रैक्टिस. whichever टॉपिक आपने सोच लिया, जैसे आपके मैथ्स में 15 टॉपिक हैं,
आपने सोचा यार कि ये 7 टॉपिक में करके जा रहा हूँ, 7 क्वेश्चन करके आएंगे, 10 क्वेश्चन करके आएंगे, इसको दबा के प्रैक्टिस करिए। इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए यार ये हो जाएगा मुझसे, राइट। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत आता है टाइम मैनेजमेंट का। कोई गलती से क्वेश्चन पकड़ लिया, उसमें 30 मिनट चला गया आपका और आखिरी में आंसर ही नहीं आया। आपको लगा कि आपने सॉल्व कर लिया, जब आपने ऑप्शन देखा ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं है, मैच ही नहीं कर रहा है, पूरा 30 मिनट चला जाएगा एंड ड्रास्टिकली आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कम हो गया तो यू विल लूज द बैटल इन सीसेट, राइट। आई हैव सीन मेनी पीपल, एक क्वेश्चन के चक्कर में दे लॉस द एंटायर एग्जामिनेशन। तो राइट, तो मेरा कहना था कि प्रैक्टिस करना है, यस, ऑलवेज प्रैक्टिस। अभी यू कैन जस्ट पिक अप द पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट द दिस पार्ट। यू विल मूव टुवर्ड्स डिफिकल्ट क्वेश्चन ग्रेजुअली, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। इस तरह क्वेश्चन आता है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट क्विकली सॉल्व इट, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज़ ऑल द PYQs दैट वी आर डिस्कसिंग, राइट। तो अगर आप ये 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ट्रस्ट मी परसेंटेज विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, राइट। लेट अस सी, if the price of an article is decreased by 20% and the new price is increased by 25%, what is the net change in price? अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने, प्लीज सॉल्व इट क्विकली, प्लीज सॉल्व, 30 seconds for you. The options are given here, 0% decrease, 5% increase, 5% decrease, data insufficient. Okay, cost of Supriya 0. Okay, you are correct, the answer is 0. तो इसमें सिंपली अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है, दो तरीका है, एक तो फॉर्मूला लगा लीजिए, वन वे। सेकेंड वे कैन बी अज्यूम द वैल्यू एज 100, ठीक है, अज्यूम द वैल्यू इज 100। क्योंकि देखिए परसेंटेज में क्या होता है कि इट इज़ अ रिलेटिव थिंग, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू, जहाँ पे परसेंटेज के टर्म्स में बात करनी होती है, वी कैन अज्यूम एनी वैल्यू, 100, 1000, जो ईजी हो कैलकुलेट करने में, राइट। यू कैन ऑल्सो अज्यूम एक्स ऑल्सो, डजंट मैटर। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 20, डिक्रीज बाय 20% होगा तो 80 हो जाएगा ये, ठीक है। एंड द न्यू प्राइस इंक्रीज टू 25%, अब इसको 25% इंक्रीज कर रहे हैं तो 1.25 इंटू 80, ठीक है, क्या आएगा, सेम आ जाएगा प्राइस, 100 आ जाएगा, सॉरी 100, राइट। मूविंग हेड, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑन सेम लाइन्स, इट इज ऑल्सो आज इन द PYQ। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वॉज 25%, the price was decreased by 20% and then again increased by 10%, right? What is the resultant increase in the price? Please solve, easy question, please solve, 30 seconds for you. Please solve quickly, very easy question. Ten. Positive is correct, positive is correct, 10, वेरी गुड। तो इसको देखिए, क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्ट टाइम लिमिट में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट, राइट। तो फर्स्ट वे इज अज्यूम इट एज 100, 25% इंक्रीज हुआ, सीधे 125 लिख दिया आपने, 20% डिक्रीज हुआ, 20% निकाला, दैट इज 25 माइनस 125, इट इज अगेन 100, राइट। एंड 10% ऐड करेंगे, सो इट इज 10,
राइट, सीधे दिख गया। एंड 100 से कंपेयर करेंगे तो 10% इंक्रीज हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, राइट, वेरी इजी। पुट श्रिपिया एंड कॉस्टोव, यू हैव सॉल्व दिस। सेकंड कैन बी थ्रू फार्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, दो सक्सेसिव, प्लीज डोंट शेयर द वाइट बोर्ड, बता, प्लीज ट्राई टू stay in the discipline, please everyone try to keep yourself mute, कोई भी क्वेश्चन होगा यू आर फ्री टू आस्क इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड, यू कैन स्पीक ऑल्सो, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, राइट। सो वी पुट द वैल्यू 25 है, फिर 20 है, 25 पुट किया, -20 किया, अगेन इट विल बी माइनस, तो इट विल कम 0, दोनों सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज में वैल्यू बिकम 0। उसके बाद अगेन वी हैव टू इंक्रीज बाय 10%, तो सिंपली द आंसर इज 10, राइट, वेरी सिंपल। चलिए मूव अहेड, प्लीज कंफर्म, try to speak, you are becoming a bureaucrat, you have to express yourself on the public forums, also your bureaucracy, don't try to be introvert. Next question, question 3, very easy question, 2021 में आया, देख लीजिए। P scored 40 marks more than Q, if Q scored 10% less than P, then how much did Q score? पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट सिंपली अगर आप कोई क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखोगे इट बिकम्स वेरी इजी। प्लीज सॉल्व, दीज आर द ऑप्शंस गिवन, प्लीज सॉल्व, आई विल सॉल्व विद यू, यू सॉल्व इन योर बुक्स, आई विल सॉल्व इन द बोर्ड। $360, correct, simply you have to make the equation, a very easy question, simply make the equation, P scored 40 marks more than Q, P is equal to 40 plus Q, Q scored 10% less than P, है ना, P से 10% लेस यानी कि 90% ऑफ P, राइट, तो पता चलता है P is Q is 90% of P. Two equations, we solve them, we get the answer 360, right, very easy. Let's move ahead. Question 4 is also very easy. You see, a student has to get 40% marks to pass an examination, cutoff is 40%, CSAT में cutoff होता है 33%. If he get 30 marks and fails by 30 marks, right, he gets 30 marks and fail by 30 marks, then what are the maximum marks in the examination? CSAT में क्या है, 100 है, 33.3, sorry 33%, CSAT maximum marks is 200. Please solve 150, okay, cost of Supriya, बाकी लोग ट्राई करिए क्विकली, 30 seconds for you. You have seen this easy question.
सीधे स्टेटमेंट लिखा है 40% ऑफ x इज इक्वल टू 30 + 30. एक इक्वेशन है, सॉल्व दिस इक्वेशन यू गेट द आंसर 150. वेरी इजी. 2020 से पहले वी गॉट इजी क्वेश्चंस, मोस्टली इजी और मीडियम क्वेश्चंस. 2023 में वी गॉट some different kind of questions. They were not difficult as such, they were different kind of questions, statement based question. So high chances कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा. Right? So these are the foundation for you. Next question, let us move quickly. When a runner was crossing 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in the event? Right, total distance. These are the options. Please solve quickly. Please solve quickly. Priya Kaustav. Okay, see, very easy. Good, Kaustav. We're now crossing 12-kilometer mark. ये रेस हो रही है, तो ये 12 किलोमीटर मार्क है. तो यहाँ पे जब आया वो, he was informed that he had completed only 80% of the race. So this is what, 80% of what? Total length. Total length. 80% of total length. That is 12 kilometers. सीधा इक्वेशन बनाया, एक सिंगल वेरिएबल है, सॉल्व इट. If there are two variables, you need two equations to solve. एक वेरिएबल होगा तो इक्वेशन. Right? Very easy. These were the easy questions. And now let us move towards a bit complicated, some more difficult questions. Right? Shall we move ahead? Please tell. Kaustav. Okay. Let us move ahead. The sixth question for today. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. Try this. As a result of 25% hike in the price of rice per kg दे रखा है. राइस का प्राइस पर kg 25% राइज हो गया. अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर ₹1200. This is the condition given. What was the original price of the rice per kg? Please try. Easy question. I will solve here. You will solve in the paper. First though should be a 40-40. So I think very simple. Just make this equation. ठीक है, पहले प्राइस x था, increase the price by 25%. Will be what? 1.25x. अब द क्वांटिटी सिंपली दे रखा है, क्वांटिटी में चेंज आया है 6 kg. ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी, दैट इज 6 kg. वेरी सिंपल. 1200 रुपये डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस. ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस वॉज x,
₹1200 divided by the new cost price, that is 1.25x. का difference क्या है? 6 है. One variable, one equation, you solve it. I think 40 is the answer. Correct. Good. Let us move ahead. Next question. Question number 7. अभी थोड़ा different type question है. थोड़ा सा इसमें we see the concept of inequality here. Right. So try to. Is it fine now? Yes, sir. This is the question. Inequality plus percentage. Try to solve. Pre option. Please solve. Please try quickly. It's a good question. Thirty seconds more. Please do quickly. Let us solve this. See, two equations are given. Right. Let us simplify those equations. The first equation you simplify. Get this. Second equation get. Now, since they have given the inequality, A is greater than B. That will always be true, right? And you have to find
P एंड Q रिलेशन, राइट। तो P और Q का रिलेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करें, व्हाट वी डू, वी सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, 1 minus 2, we get P minus Q is equal to this. This is the final derivation. Now this derivation, P minus Q, it can either be positive or negative or 0, right? If we solve this equation using various values of A and B, right? तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल B की वैल्यू अपन लेते हैं 100, राइट, B की वैल्यू अपन 100 लेते हैं, A की वैल्यू अगर अपन से निकालेंगे तो वी गेट 150, A की वैल्यू 150। तो बेसिकली अगर आप अज्यूम करो P इज इक्वल टू 100 एंड A इज इक्वल टू 150, तो देन दिस इक्वेशन विल बिकम 0, दिस P माइनस Q इज इक्वल टू व्हाट, P इज 0, दैट इज P इज इक्वल टू Q। अगर आप इसको पूरा 0 रखते हो तो यू सॉल्व दिस, यू गेट A इज इक्वल टू 3/2B, यानी कि जो भी B की वैल्यू आएगी यहाँ पे आप जो भी B की वैल्यू डालिएगा, A की वैल्यू उससे बड़ा आएगा इफ़ B इज़ मोर देन 1, राइट। तो वी हैव सीन दैट P इज इक्वल टू Q सेटिस्फाई हो रहा है, एक आपने एग्जांपल से देख लिया है, B को 100 रखा, A को 150 रखा, P इज इक्वल टू Q सेटिस्फाई हो रहा है। देयर कैन बी मल्टीपल वैल्यूज दैट सेटिस्फाई, अब B को आपने 200 रख लिया तो A की कुछ और वैल्यू आ जाएगी, तो P इज इक्वल टू Q, दिस इज ट्रू, राइट। देन आपने कोई और वैल्यू रखी, अभी तो ये हमने 0 पे सेटिस्फाई किया है, यहाँ पे यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ B एंड दैट यू कैन हैव वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, and you will see for some values we will have this equation positive and some values we have this equation as negative, right? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि A is greater than B, तो A की वैल्यू आप कितना बढ़ा सकते हो, there is no limit to that, तो overall you can increase value of A very much as compared to B, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे this 0.1 then माइनस करेंगे तो obviously because this one is bigger so this will be negative, नेगेटिव तो आराम से आ जाएगा, P और Q में नेगेटिव आया, दैट मीन्स दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई। सेकेंड इक्वेशन में क्या 0.1 A दे रखा है, तो और यहाँ पे 0.15 दे रखा है, तो वी विल हैव सम अदर वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होगा, राइट। वेरी सिंपल है, तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो नन कैन बी सेट विद सर्टेनिटी, इज करेक्ट। इवन दो भी अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, यू कैन राइट डायरेक्टली मार्क दिस, डोंट ट्राई टू सॉल्व द थर्ड वन, राइट, वी हैव टू सेव द टाइम। इज इट क्लियर, बताइए, कौस्तुभ, नम्रता, प्रिया, Yes, sir. ओके, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इस टाइप में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे नंबर्स दे रखा है, राइट, इट कैन बी एजेस ऑल्सो, इट कैन बी मार्क्स ऑल्सो, एनीथिंग कैन बी देयर आर टू नंबर्स x एंड y एंड दे आर 20%, 28% less than the third number z, right? Now they are asking by what percentage is the number y less than x, क्या किया इन्होंने, x और y को z से पहले कंपेयर किया, नाउ दे आर आस्किंग आपस में रिलेशन बताइए, प्लीज सॉल्व दिस, ऑप्शंस आर गिवन हियर, 30 seconds। प्रिपेयर 10%, बाकी लोग ट्राई करिए।
कॉस्ट ऑफ 12%। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। एग्जाम में ऐसी मिस्टेक होती है। नाउ लेट अस सी, मेरे आई एम रॉन्ग, यू कैन जस्ट पॉइंट की यहाँ पे आप भी गलत हैं, राइट। सो टू नंबर्स x एंड y आर रेस्पेक्टिवली 20%, 28% लेस देन द थर्ड नंबर। 20% लेस देन z मतलब क्या हुआ? 80% ऑफ z, दैट इज व्हाट? 0.8 ऑफ z। फर्स्ट इक्वेशन। y इज 28%, राइट, इट इज 0.72 ऑफ z। इसमें कोई गलती है? इज इट फाइन? जैसी by what percent is the number y less than x? You subtract both of them, what you will get? 0.08, 0.08 z, sorry, 0.08 z अपॉन x। अपॉन x करेंगे यहाँ पे, क्यों करेंगे x? क्योंकि by what percent is the number y less than x? x is the base, जिस भी नंबर को बेस बनाते हैं वो नीचे आता है ना। डिफरेंस बिटवीन x तो ऐसे लिखते हैं x माइनस वाई अपॉन x 200, राइट। तो यहाँ पे 0.08 z अपॉन x, x इज व्हाट? 0.8 z इंटू 100, इट विल बी 10%, राइट। कॉस्ट ऑफ इट क्लियर? आंसर इज 10%। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में केयरफुल रहना है आपको, है ना। यहाँ पे अगर आपने जैसे मैंने किया ना अभी 0.08 x अपॉन x कर देंगे तो सीधे 8% आंसर आएगा, गलत हो जाएगा आपका। एंड यूपीएससी ऑप्शन भी देता है ऐसे, देखिए 8% कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया, राइट। सही से वैल्यू डालेंगे, सो दिस विल बी देन। मूविंग अहेड, सम गुड क्वेश्चंस वी आर डूइंग नाउ। 2024 लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट, विल गेट कॉन्फिडेंस। देखिए 2023 में 2023 एग्जामिनेशन, जैसे डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ा? 2014 से अगर बात करें बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहा था, 2020 के बाद थोड़ा सा जंप हुआ और 23 में अचानक से जंप हो गया, 24 में ऐसे है। आई वुड से कि ऐसे बना रहेगा ऑलमोस्ट, राइट। 24 वाले लेवल पे अगर आप कर ले रहे हैं, सो यू विल बी कंफर्टेबल इन 2500। लेट्स सी द क्वेश्चन। अ नंबर इज मिस्टेकली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। दिस वाज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम पूछते हैं। इट वॉज डिवाइडेड इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट? परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। और इसमें देखिए ऐसा नहीं कि आप पूरा x अज्यूम कर, लेट अस अज्यूम इट इज x एंड देन यू सॉल्व इट, इट विल बी लेंदी। शॉर्टकट निकालिए, सीधे 100 अज्यूम करिए। प्लीज ट्राई। प्री प्रिया, गुड, 3.75। ट्राई करिए क्विकली, 20 सेकेंड्स मोर। एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती होता है। लेंदी मेथड भी होता है, शॉर्टकट मेथड। तो सिंपली अगर हम 100 एज्यूम करते हैं एज अ नंबर, डिवाइड बाय 4 25 आए, मल्टीप्लाई बाय 4 400 आए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। व्हाट इट इज रिटन, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज द रिजल्ट? द रिजल्ट ड्यू टू द मिस्टेक, ठीक है ना। इसमें ध्यान है परसेंटेज चेंज आपने निकाल लिया, दैट इज 375, यू रिटर्न इट हियर। इसको डिवाइड किससे करेंगे?
दैट इज़ अ क्वेश्चन टू आस्क. तो डिवाइड हम लोग करेक्ट वैल्यू से करें. चेंज इन द रिजल्ट. रिजल्ट मीन्स द करेक्ट रिजल्ट, है ना. करेक्ट रिजल्ट इज 400. क्या लिखा हुआ है? It was divided by 4 instead of multiplying by 4. So this was the correct thing. Multiplying by 4 was the correct thing. तो वो यहाँ पे आएगा 400. You multiply this, you get this answer. Is it clear? Kaustav, Shripriya. Okay, let us move ahead. So we are moving quickly today. Only 3 questions more are left. Let us do it quickly. In an exam, 80% students passed in English, 70% passed in Hindi, and 15% failed in both the subjects. ठीक है ना? What is the percentage of students who failed in only one subject? इस तरह क्वेश्चन फेमस हो गया. आई थिंक 2024 का ये भी है. These kind of questions have become very prominent. Statement थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है. राइट, प्लीज सॉल्व दिस. 1 minute टाइम. डू इट क्विकली. Priya Singh 20. ओके, लेट अस सी दिस. सी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन होता है जिसमें दे हैव गिवन कि इतना लाइक परसेंटेज पीपल आर पासिंग, फेल हो रहे हैं. तो वेन डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं. राइट, तो दिस बिकम्स वेरी इजी देन. पूछा क्या है? हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट. फेल का पूछ रहा है. वेन डायग्राम भी हम लोग फेल वालों का बनाते हैं. राइट, ये इंग्लिश फेल वाला, ये हिंदी फेल वाला, बीच में जो इंटरसेक्शन है दैट इज बोथ आर फेलिंग. अब जैसे इंग्लिश में देखा पास परसेंटेज है 80, तो फेल कितना हो गए 20%. राइट, हिंदी में 70% पास है, फेल कितने हो गए 30%. इसी चीज़ को हम लोग वेन डायग्राम में पुटअप कर देते हैं. राइट, दिस द इंग्लिश 20 30 लिख दिया. अब दोनों में फेल 15. 20 में से 15 माइनस करेंगे, ओनली इंग्लिश में फेल आ जाएगा, दैट इज़ 5. 30 में से 15 माइनस करेंगे ये वाला, तो ओनली हिंदी में फेल कितना आ जाएगा 15. राइट, देन वी हैव टू फाइंड फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट. 5 इंग्लिश में है, 15 हिंदी में है, 20 फेल इन वन सब्जेक्ट. दिस इज द आंसर. गुड श्रीप्रिया. लेट अस मूव अहेड. 2 more questions. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट विल सॉल्व देम इजीली. A person buys 3 articles PQR, the 3 articles, and total expenditure is 50 rupees. Right?
the price of Q is 16 and which is the least. This is also given. This is the least and price 16. The question that is asked is what is the price of the article P? Okay. And to solve this, they are given two statements, right? The cost of P is not more than that of R. Statement 2 is the cost of R is not more than that of P. And the options that are given is statement 1 is sufficient to solve, statement 2 is sufficient to solve, both statement 1 and statement 2 sufficient to solve, none of them are sufficient. Right? This is a good question. Asked in 2024 examination last year only. Please try to solve this. It's a good question. Please solve. People are saying C is the answer. Good. Cost of C. Okay, good. So let us solve this. Q का वैल्यू दे रखा है P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू का वैल्यू दे रखा है 16. P प्लस R इज इक्वल टू 30. Right, this is a equation that we get. And we also know that Q is the least. Right. Now let us see the statements. And जो भी लंबा statement दिया हुआ है, always try to reduce that into an equation. It can be an inequality also, it can be some algebraic equation also. The cost of P is not more than that of R. Statement 1. The cost of P is not more than that of R. Not more than that of R. Right. इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं. Less than equal, P is less than equal to R. Right. Second statement. The cost of R is not more than that of P. Cost of R is not more than that of R is less than equal to P. ठीक है. तो अगर पहला स्टेटमेंट देखें, this statement is there. P is less than equal to R. What is the article of, what is the price of article P? P की inequality दे रखी है. इस inequality से just based on this statement we cannot find the value of P. Right? There are two variables, one equation. Second statement में क्या बोल रहा है? R is less than equal to P. Again we are not able to solve. We can have multiple values and then there is no definite value for P. अगर दोनों को साथ में रख दें, right? P is less than equal to R, R is less than equal to P. एक ही वैल्यू सेटिस्फाई होती है. That is what P is equal to R. Right? If P is equal to R, then what would very easy. 2P is equal to 34. P की value is equal to. We can solve this. This statement C is correct. Is it clear? Cost of, yeah, you have got the right answer. Shall we move ahead? So the last question for today. Good question again. बिग क्वेश्चन. बहुत सारे बड़े क्वेश्चन देखे ना लोग पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, यार ये तो करना ही नहीं है. तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ट्रस्ट में नहीं वो इजी होता है. थोड़ा सा अगर अपन फोकस होकर उसको करें. राइट, बट लेट अस सी दिस. यू रियलाइज इन अ पार्टी 75% took tea, 60% coffee, 15 took both tea and coffee. तो ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इससे अपन ने यहाँ पे किया था. We use a Venn diagram here. English में फेल, हिंदी में फेल. इसी टाइप का Venn diagram we can use in this. No one taking milk takes the tea. Again another condition given. Each person takes at least one drink. Third condition. अब इसमें क्या है, क्वेश्चन है how many persons attended the party. This is the question they are asking. And now they have
given two conditions to solve this, two statements. 50% took the milk. Number of persons who attended the party is 5 times the number of persons who took the milk only. Only is important, not milk, milk only, right? So दोनों statements का use करके you have to like the options are that statement 1 is sufficient to solve, statement 2 is sufficient to solve, both are sufficient to solve, and none of them can be used to solve data insufficient. Please try this. Good question. The last question for today. Again, I think it was asked in 2020. Yeah, this is 23 exam. हाँ, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था तो उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा था. प्रिया. Please solve quickly, Kaustubh.
30 seconds more, please do it quickly. चलिए लेट अस सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए ये हमने स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ठीक है, या फिर जो पहले क्वेश्चन दिया हुआ था, दिस होल क्वेश्चन वी हैव कन्वर्टेड इनटू द वेन डायग्राम, राइट. दिस इज द वेन डायग्राम. देयर आर थ्री थिंग्स हियर, टी, कॉफी एंड मिल्क. लेट अस सी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हाउ टू ड्रॉ द वेन डायग्राम. इन अ पार्टी 75% टू टी, 60% टू कॉफी एंड 15% टू बोथ टी एंड कॉफी. पहले टी और कॉफी का बनाते हैं. का इंटरसेक्शन आएगा बोथ टी एंड कॉफी, 15 पीपल. टोटल टी का 75 हो गया, टोटल कॉफ़ी का 60 हो गया, राइट. सो ओनली टी का निकालना है, 75 माइनस 15 दैट इज 60. ओनली कॉफ़ी निकालना है 60 माइनस 15 दैट इज 45, राइट. यहाँ तक हो गया आपका. देन कॉस्ट ऑफ सिंग बी. लेट अस सी नाउ. नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट मिल्क. दे आर सेइंग दैट नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी. तो अगर अपन मिल्क का बनाते हैं, अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल गोला बनाते, नो का इंटरसेक्शन होता. अगर अपन ऐसे बनाते इंट्रोडक्शन, राइट, होता एक, ठीक है. दिस कैन बी वन ऑफ द वे. बट यहाँ पे बोला है नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी. टी और मिल्क में कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट. टी और मिल्क में कोई इंटरसेक्शन नहीं होना, तो इसलिए मिल्क का हमने अलग से बना. ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक. इसमें ये पता चलता है कि जो बाहर इस तीनों सर्कल्स के बाहर वाला जो वैल्यू है दैट इज 0. देयर इज नो वन आउटसाइड दिस, राइट. नाउ two unknown values are there. Firstly, people who take only milk, let us assume as y, right. And people who take coffee and milk both, let us assume as, यहाँ तक आ गया. Now question is how many persons attended the party, right. So very simple है, कितने लोग अटेंड किए हैं. This whole circle that is 75. Then इसके बाद जो remaining portion है this, okay, that is what, that is 45. That is 45 डाल दिया. और इसके बाहर का ओनली जो मिल्क वाला एरिया है दैट इज वाई, दैट इज वाई. तीनों का सम दैट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड द पार्टी. तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड वाई इज इक्वल टू व्हाट, 120 प्लस वाई, राइट. 120 प्लस वाई. तो वाई निकालना है. अब देखते हैं वाई कैसे निकलता है. 50 पर्सन्स टुक मिल्क. स्टेटमेंट 1, 50% टुक मिल्क. तो यहाँ पे मिल्क लिखा हुआ है, जस्ट बी वेरी केयरफुल. मिल्क लिखा है, यहाँ पे मिल्क ओनली लिखा हुआ है. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. यू हैव टू deduce द थिंग्स वेरी प्रॉपरली. मिल्क दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 50. This is the equation, x plus y is equal to 50. Using this equation, can we find the value of y? Yes or no? Please tell. Using this equation, can we find the value of y? Very good. नहीं निकाल सकते. पहला स्टेटमेंट से काम नहीं बनेगा. प्रिया, देखिए कहाँ पे गलती की आपने. This statement is not sufficient to answer the question. The second statement is
number of persons who attended the party is 5 times the number of persons who took milk only. Here we have only, right? If we have only, that means this is y. milk only वाला ये रीजन है, ठीक है? So for a person who attended the party, that is 120 plus y. 120 plus y, that is equal to what? 5 times the people who took milk only. This y, 5 dot y. You find the value of y. One equation, one variable, find the value of y, very easy. y निकल गया तो total number of people who attend the party भी निकल जाएगा. So the answer is statement 2 is sufficient to answer the question, and statement 1 is insufficient. So okay, I think Shripriya, you have realized your error. So with this we come to the end of the session. I hope you enjoyed it. Ultimately आपको जोश के साथ होश बना के रखना है. We have only I think 10 days left for the examination. 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाएगा आपका. तोड़ के रख देंगे, ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए. जितना पढ़ा है, वट एवर यू हैव रेड, जितना पढ़ा है आपने उतने में ही एग्ज़ाम निकालना है, राइट? तो कीप द मोटिवेशन हाई, यूज़ योर फुल एनर्जी, फुल पॉजिटिविटी एंड फुल जोश, राइट? एग्जामिनेशन वो नहीं निकालते हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं. दिस एग्जामिनेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट एग्जामिनेशन. इट डजंट चेक्स योर नॉलेज ओनली, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, ओनली. इट डजंट चेक योर नॉलेज ओनली, चेक्स योर पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी को पूरा प्रदर्शित करें. योर करेज, योर विजडम, योर पेशेंस एंड योर इंटेलिजेंस, राइट? हैव दैट फेथ. डू द लास्ट मिनट रिविजन वेरी क्विकली. 10 दिन का टाइम है. दीज आर द लास्ट मोमेंट. ज़्यादा अब नया नहीं पढ़ना है. जो भी पढ़ लिया है उसी को समेट लीजिए. प्लीज़ कंसोलिडेट वट एवर यू हैव लर्न. थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए. क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, PYQ लगा लीजिए. क्वेश्चन पेपर नया लगाने से अच्छा है PYQ लगाइए. 1-2 पेपर देख लीजिए, डजेंट मैटर. नाउ इज़ द टाइम टू क्विकली रिवाइज थिंग्स. डेवलप द कॉन्शियसनेस एंड द कॉन्फिडेंस फॉर द एग्जामिनेशन. स्ट्राइक हार्ड व्हेन द मोमेंट कम. जहाँ से बात शुरू की थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर. द आर्मी स्ट्राइक हार्ड व्हेन द मोमेंट कम्स. दैट इज़ अ वॉर. आपका भी वॉर आने वाला है. UPSC एग्जाम. हिट द एग्जामिनेशन हार्ड. No one can stop, right? Thank you for joining, and I hope you enjoyed the session. Let us meet again tomorrow. We have a question. CSAT का प्रैक्टिस काम करें तो चलेगा आगे के 10 दिन. I would say just see the PYQs. जो भी 10 टॉपिक आपको लगता है मैथ्स में, देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में तो करना नहीं है कुछ. इट इज़ वेरी ईजी. यूज़ योर रीडिंग स्किल्स एंड एनालिटिकल स्किल्स टू सॉल्व इट क्विकली. रीजनिंग और मैथ्स में जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड, जस्ट रिवाइज द फॉर्मूलाज क्विकली, डू सम क्वेश्चंस. PYQ से भी चलेगा, डजंट मैटर. कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह किया होगा तो उससे रिवाइज कर लीजिएगा. बहुत ज़्यादा नहीं करना है. CS पे फोकस कर सकते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. लेट अस मीट अगेन द नेक्स्ट सेशन. होपफुली इट विल बी टुमारो. वेलकम.